Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Rajni Mathematics Academy. As you all know, we are meeting after 10-15 days. So I hope you are doing well. I'm also doing well, but you must also do well. Okay? Till now, we have covered theory part of sets, that is very first topic of class 11th mathematics, and we have covered theory part in the 7 lectures. And in those theory parts, we have covered topics of sets, that is definition of sets, what are the uses of sets, why we require sets, right, and representation of sets in set builder form and roster form. Then we have seen subsets, power sets, equal sets, void set, empty set, null set. Null set, void set, empty set is one same thing, right? Power set, Venn diagrams, interval sets, subsets of R, Venn diagrams, universal set. We have covered all theory part of sets. So today we will see exercises of sets. मतलब कि जो अब तक हमने थ्योरी पार्ट किया है वो हमें अच्छे से समझ में आया है या नहीं, वही चेक करने के लिए हमें एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइज करने का मेन मोटिव क्या है? अगर आपने एक्सरसाइज अच्छे से कर ली, इट मीन्स आपको थ्योरी पार्ट भी इजीली अच्छे से समझ में आ चुका है। आप उसको कहीं भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको यूज कर सकते हैं, कहीं भी जहां पे भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 1.1 of sets. 1.1 and sets. See, सेट्स के चैप्टर में एक्सरसाइजेस में हर क्वेश्चन में मोस्टली सभी क्वेश्चंस में 8-9 पार्ट दिए हुए हैं, तो मैं आप सबको एक एक दो पार्ट कराऊंगी। सिमिलरली यू कैन डू अदर पार्ट ऑल्सो। ओके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट गेट इट, you can ask me again. I will do first 2 parts and 6-7 left part you will do yourself. If you do not able to solve, then you can ask me. Okay, so let's start. Question number 1. In the question number 1, we have to tell the given collection is a set or not. First of all, to find it whether it is a set or not, for definition of set you must know. Set is the collection of well-defined objects. So defined objects in the given collection must be well-defined. So see, first, collection of months in the year beginning with J. जी, हमें इसमें वो लिखने हैं, वो वाले मंथ्स का कलेक्शन बनाना है जो ईयर के मंथ्स जे से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, September, October, November, December. So only 3 months are there: January, June, July. These 3 months are in the year with which begins with the J. So this is the collection of well-defined objects. So this will be a set. Okay. Similarly, second question, second part. Collection of 10 most talented राइटर्स ऑफ इंडिया, या इन इंडिया। इंडिया के जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं 10, उनके नेम्स लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइटर्स हर लैंग्वेज के होते हैं, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, ओडिसी, बहुत सारी लैंग्वेज है, उड़िया लैंग्वेज, राइट। 22 लैंग्वेजेस तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, 8 स्केड्यूल में अदर भी लैंग्वेजेस होती हैं, तो उन सब के राइटर्स हमें देखने हैं। तो सब लैंग्वेज में अपने अपने टैलेंटेड राइटर्स हैं, सब अपने आप में टैलेंटेड हैं, राइटर्स अच्छा ही लिखते हैं। तो इतने सारे राइटर्स में 10 मोस्ट टैलेंटेड निकालना इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके,
So it is not a collection of well defined objects. Objects are not well defined in this collection, so it will not be a set. ये set नहीं होगा. Now there are more than 6-7 parts, so you can solve them yourself. Now we will move to second part, second question. In the second question, what we have? Yes. Second question we see. Second question. There is a set A which contains elements 1, 2, 3, 4, 5, 6. And now we have 6 parts. In that we have to tell whether given element belongs to set A or not. See first. In this question we have to tell कि given elements belongs to set A or not. Belongs to का I told you कि belongs to का साइन ये होता है, and does not belongs to का ये होता है. राइट इसको हम एप्सिलॉन भी बोलते हैं. देखते हैं 5 1 2 3 4 5 5 इज देयर इन द सेट ए. 5 जो है सेट ए के अंदर है, तो इट बिलोंग्स टू सेट ए. 8 सेट ए में 1 2 3 4 5 6 तक ही एलिमेंट्स हैं, 8 है नहीं, तो इसलिए ये डज नॉट बिलोंग्स टू. 0 देखते हैं ए सेट के अंदर 1 से लेके एलिमेंट्स हैं 6 तक, 0 तो नहीं है, तो इट ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए. 4 देखते हैं, 4th is there, so it also belongs to set A. Right? 2 is there in the set A. See 10. 10 is not there in the set A. So second question is I have done. Now I hope ये समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आता है, you can ask me any number of times. Okay? Now third question. थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में 8 9 पार्ट्स हैं, सो मैं 2 पार्ट्स करूंगी, बाकी 2 आप खुद से करेंगे. ठीक है, बाकी के जितने भी पार्ट्स बचेंगे यू विल डू इट योरसेल्फ. इफ यू अंडरस्टैंड इट्स ओके, इफ यू डू नॉट एबल टू सॉल्व इट यू कैन आस्क मी. ओके, सो थर्ड का फर्स्ट पार्ट. इन द थर्ड क्वेश्चन सेट्स आर गिवन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, वी हैव टू राइट देम इन द रोस्टर फॉर्म. थर्ड क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस हैं, सारे पार्ट्स हैं, वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, हमें रोस्टर फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लाइज बिटवीन. ठीक है, -3 से 7 के बीच में वो लाई करता है, देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर है तो माइनस नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज दोनों इंक्लूड करनी है. अगर नेचुरल नंबर दे देता तो अलग हो जाता. इंटीजर है तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यूज इंक्लूड करनी है, -3 से 7 के बीच में. सो सेट इन द रोस्टर फॉर्म विल बी -2 -1 0 1 2 3 4 5 6. ये इसके एलिमेंट्स होंगे. देखिए -3 से और 7 के बीच में बोला हुआ है, लेकिन -3 और 7 उसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये ओपन सेट है. ठीक है, तो -3 और 7 इंक्लूड नहीं है. अगर -3 इंक्लूड होता तो ये ऐसे होता -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6. राइट, अगर -3 इंक्लूड होता तो सेट ये होता, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया हुआ है. ठीक है,
दूसरा देखते हैं। जब इसमें दोनों में इक्वल टू होगा तो यहाँ पे 7 और -3 दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो गिवन है वो ये है, तो आंसर इसका ये होगा, राइट। जब 3 में इंक्लूजन का साइन होगा तो यहाँ पे होगा, दोनों में इक्वल टू का साइन होगा तो -3 और -7 दोनों सबसेट के पार्ट होंगे, इसमें ओनली 7 होगा। आई होप डिफरेंस बिटवीन क्लियर हुआ होगा इनके बीच का। ठीक है, ओके। नाउ सेकंड पार्ट ऑल्सो यू कैन डू योर सेल्फ। There are 6 parts. First I have done, other 5 you can do yourself. In the fourth question, yes, in the fourth question, sets are given in the roster form. We have to convert them in the set builder form. So first is, yes, 3, 6, 9, 12, right? यही है ना? Yes. इसमें देखिए क्या सेट बिल्डर फॉर्म बन सकता है। X such that X 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो X is such that X is equal to 3 and where n lies between 1 and 4 और 1 and 4 भी included है। X belongs to ये ओ आ जाता n may be belongs to positive integer, n belongs to natural number, कुछ भी आप लिख सकते हैं, you can write it your own, okay, जो भी आपको सही लगे, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, या ओनली इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आई हैव डन। नाउ वी सी फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। इन द फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट वी हैव, ओके, एलिमेंट्स ऑफ द दिस, मतलब कि सेट दिया हुआ है कुछ, तो हमको उनके एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट का ए, x such that x is an odd natural number, ओड नंबर लिखना है, और नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, ओड है तो 3 आएगा, 5 आएगा, 7 एंड सो ऑन। दीज 3 डॉट्स डिनोट्स दैट इट इज एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट की थ्योरी में बताया था, अगर किसी भी सेट के पीछे ये 3 डॉट्स आ जाए इट मींस इट इज एन इनफाइनाइट सेट। ऑड नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक होते ही हैं, उसमें हमें ऑड वंस लेने हैं ओनली, तो कितना आप लिखेंगे, तो 2 3 4 एलिमेंट्स लिखने के बाद यू कैन राइट 3 डॉट्स, इट मींस इट इज एन इनफाइनाइट सेट, राइट। ऐसे ही आप अदर पार्ट्स कर लेना उसके फिफ्थ क्वेश्चन के। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी एनी नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन में वी हैव टू मैच द फॉलोइंग। सिक्स्थ क्वेश्चन यू कैन डू इट योरसेल्फ, बिकॉज मैच द फॉलोइंग का मैं आपको पढ़ देती हूँ, चलो कर देते हैं इसको।
लास्ट पार्ट इज x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है, x सच दैट x इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, हमें इनके मैच द फॉलोइंग करने हैं, देखते हैं। 1 2 3 4 6, 1 2 3 6 प्राइम नंबर, ऑड नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, सो इससे ये वाला मैच करेगा। थर्ड 2 3 x इज अ प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6, ओके। मैथमेटिक्स x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। 1 3 5 7 9 is a natural number, sorry कुछ मिस्टेक, x is an odd number, yes, ठीक है। आई होप डिफरेंस समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। अगर नहीं आया यू कैन आस्क मी अगेन, ओके। x is an odd natural number, देखिए x is a prime number and divisor of 6, इसमें प्राइम नंबर्स लेने हैं जो डिवाइजर ऑफ 6 हो, वो 2 3 होंगे। x is an odd natural number less than 10, 1 3 5 7 9 ही होंगे odd numbers less than 10। x is a natural number and divisor of 6, natural number होना चाहिए and divisor of 6 होगा। natural number you know 1 2 3 4 5 6 and so on, and divisor of 6 होगा तो maximum डिवाइजर ऑफ 6 क्या होगा, इटसेल्फ 6 होगा, तो उससे बिलो के देख लेते हैं 1 2 3 6, राइट। तो ये क्वेश्चन वी हैव डन, ओके। आई होप एक्सरसाइज इज आल्सो डन, फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज नंबर 1.2। we will start it, you have to wait for 1 minute, okay। So now we start with exercise number 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमने 6 क्वेश्चंस किए हैं। 6 क्वेश्चंस में सेकंड एंड सिक्स्थ कंप्लीट किया है। 1 3 4 5 में आपको पार्ट्स करने हैं। पार्ट्स मैंने एक एक दो दो करा दिए हैं, तो बाकी पार्ट्स आप खुद से करेंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आर द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट, ओके। एम्प्टी सेट मैंने पढ़ाई ही था आपको कि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो खाली है एकदम। एम्प्टी सेट इज आल्सो नोन एज नल सेट और वॉइड सेट। क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में एम्प्टी सेट भी बोल सकता है, वॉइड सेट भी बोल सकता है और नल सेट भी बोल सकता है, बिकॉज दीज आर द सेम थिंग, ओके। सो इन दिस एक्सरसाइज नंबर 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ कलेक्शन दिए हुए हैं, कुछ सेट्स दिए हुए हैं, तो हमें उसमें देखना है कि वो एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। फर्स्ट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। जस्ट वेट, हमें एक ऐसा सेट है जिसमें ऑड नंबर्स हैं जो 2 को 2 से डिवाइड होते हैं। बताइए ऐसा कौन सा ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा? ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है, ऑड नंबर नहीं होता है जो 2 से डिवाइड हो, बिकॉज 2 इवन नंबर है। तो जो 2 है वो सभी इवन नंबर्स को डिवाइड करता है, 4 6 8 12 10 1000 1002 1004, है ना। कितना भी बड़ा नंबर हो और वो इवन नंबर होगा तो 2 उसको 100% डिवाइड करेगा। बट देयर इज नो एनी ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो सके, सो इट विल बी अ एम्प्टी सेट। आपको पता ही है एम्प्टी सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, या तो 5 से या ओपन ब्लैंक ब्रैकेट से, ठीक है। तो ये खाली सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स।
सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। आप लोग 11th क्लास में हैं तो आपको प्राइम नंबर्स अच्छे से पता होंगे, और उसमें प्राइम नंबर्स में ओनली एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है। सो दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट, क्योंकि इसके अंदर 2 है। ठीक है, सो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में एक प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 19 एंड सो ऑन। मतलब कि वो नंबर्स जो खुद से डिवाइड हो एंड 1 से डिवाइड हो। ठीक है, तो उसमें एक 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। सो इवन प्राइम ये है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। देयर आर 2 more parts also in this question, so you can do yourself. If you find any difficulty you can ask me. बाकी 2 पार्ट बचे हैं, इसमें हमने 2 पार्ट करा दिए आपको। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं अदर पार्ट्स में। ठीक है, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें क्या करना है? ओके, सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। आपको बहुत अच्छे से थ्योरी पार्ट में कराया हुआ है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, राइट। फर्स्ट पार्ट, set of months of a year, set of months of a year। एक साल के जितने भी महीने होते हैं उनका सेट बनाना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये तो फाइनाइट सेट है क्योंकि प्रॉपर एलिमेंट्स हैं। इनफाइनाइट नंबर्स भी नहीं है, 12 है, काउंटेबल है, तो ये हमारे फाइनाइट सेट है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, जहां पे भी 3 डॉट्स आपको दिख जाए इट मींस इनफाइनाइट सेट है। अभी मैंने लास्ट एक्सरसाइज में अभी जस्ट आपको कराया भी है, जब 3 डॉट्स आ जाए इट मींस इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया है इसमें वो हमने किया है एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट का। सेकंड क्वेश्चन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट का किया, तो इसमें आपको बताना है कि गिवन सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक है, ये 2 पार्ट मैंने कर दिए हैं सेकंड क्वेश्चन के, 3 पार्ट्स लेफ्ट हैं। यू कैन डू योरसेल्फ, आप अपने आप करके देखिए। अगर नहीं समझ में आते हैं, कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप मुझसे पूछिए, एक बार नहीं 100 बार पूछिए, बट आई विल एक्सप्लेन इफ यू विल आस्क। ठीक है, नाउ वी हैव टू in the third question also we have to state whether given set is a finite or infinite। उसके भी 1-2 पार्ट करके देखते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन था देख लेते हैं। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन, set of months of a year, where is, yes, set of lines which are parallel to the x-axis, lines parallel to x-axis। You are in class 11, so you know this is a sign of parallel, right? थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको पता ही है ये y है, ये x है, तो x एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारी लाइंस है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस है, सो इट विल बी अ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, बहुत सारी लाइंस आएंगी तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट।
In this set, you know, there are 26 elements, letters in the English alphabet. तो ये फाइनाइट सेट होगा। थर्ड क्वेश्चन के हमने 2 पार्ट कर लिए, बाकी पार्ट्स यू कैन डू योरसेल्फ। कितने पार्ट्स हैं उसके अंदर? 4 पार्ट्स हैं टोटल, 4 ये 5 है, 5 है, तो आप बाकी के 3 खुद से कर लेंगे, ठीक है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अगर किसी को स्पीड स्लो लगती है तो आप स्पीड में जाके स्पीड तेज कर सकते हैं उसकी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ओके। ए और बी इक्वल है या नहीं ये बताने। इक्वल सेट्स की भी मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी पार्ट कराया हुआ है, तो देखते हैं। ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, बी सी बी ए। दो सेट्स इक्वल होने के लिए सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम नंबर नहीं हो। मे बी ये 2 बार एग्जिस्ट कर रहा हो, ये 4 बार एग्जिस्ट कर रहा हो, सेम नंबर ऑफ टाइम्स नहीं होना चाहिए, सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स दोनों सेट्स के अंदर होने चाहिए। देखिए, ए इज देयर, ए इज देयर, बी इज देयर, बी इज देयर, सी इज देयर, सी इज ऑल्सो देयर, डी इज देयर, डी इज ऑल्सो देयर। सो ए इज इक्वल्स टू बी। नाउ वी डू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखते हैं 4 8 ए सेट है, इसमें 4 8 12 16 है। बी में देखते हैं क्या है, 8 4 16 18। चेक करते हैं इसके अंदर। 4 is there, 4 is there, 8 is there, 8 is there, 12 is not there in the B, 12 does not belongs to B, 16 is there, 18 does not belongs to A, so A is not equals to B। तो A B इक्वल नहीं है इस वाले में। तो 2 एग्जांपल्स कर लिए हमने, 2 पार्ट कर लिए, बाकी पार्ट्स आप खुद से करेंगे, ठीक है। बताइए आपको क्या करना है। फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, क्वेश्चंस दिए हुए इक्वल सेट्स के ही हैं, देखते हैं इक्वल सेट्स है या नहीं है। एक रोस्टर फॉर्म में दे दिया, एक सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, ऐसा कुछ है। X इज अ सॉल्यूशन ऑफ कोई इक्वेशन दी है, ये देखना है। देखिए, B के सबसे पहले हम एलिमेंट्स निकालेंगे। फाइव एक्स को 2x प्लस 3x लिख सकते हैं, एंड 2 3 जो 6 होते हैं इसके बराबर, राइट। देखिए, इन दोनों को इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, 3 नहीं 2 कॉमन लेंगे, 3x, यस 3 कॉमन लेंगे तो 3 2 जो 6, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 x प्लस 3। सो x के एलिमेंट्स क्या होंगे, -2 और -3। b में जो एलिमेंट्स हैं वो -2 और -3 हैं। ए में एलिमेंट जो है 2 और 3 है पॉजिटिव, तो ये अपोजिट है एक दूसरे के, तो A इज नॉट इक्वल्स टू B। सो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट आई हैव डन, अदर पार्ट्स यू विल डू योरसेल्फ, ठीक है। इसमें देखते हैं कितने पार्ट्स हैं, 2 ही पार्ट्स हैं, तो आप खुद से कर सकते हैं सेकंड पार्ट भी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, अभी देखेंगे
चलो हम इसका फिफ्थ का सेकंड पार्ट भी कर ही लेते हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। x is a letter such that x is a letter of the word follow. B, x such that x is the letter of the word wolf. ए के एलिमेंट्स निकालो, F O L W। हमें एक एक ही बार लिखने होते हैं एलिमेंट्स। नाउ वी हैव टू चेक कि सेम है या नहीं ए और बी। F is there, F is there, O is there, O is there, L is there, L is there, W is there, W is there. So A equals to B. Okay, clear? Fifth, the second part is also done. Now we move to question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताना है? सेट्स इक्वल सेट्स। ओके, ए चेक करते हैं। ए 2 4 8 12। बी सेट चेक करते हैं 1 2 3 4। तो ए और बी तो इक्वल है ही नहीं, लिखते जाओ साथ साथ। सी सेट 4 8 12 14। सी 2 is not there, 14 is not there. So A B is not equals to C, B C is not equals to C. तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। डी देखते हैं 3 1 4 2। यहां से आप देख सकते हैं बी एंड डी इक्वल है, 1 1 2 2 3 3 4 4। सो बी एंड डी आर इक्वल, ठीक, टू ईच अदर। ई देखते हैं -1 एंड 1। एफ देखते हैं F इक्वल टू जी है। ई ई देखिए और जी देखिए, H 0 1। तो सारे प्रोसेस में आपने देखा है B और D इक्वल है, E और G इक्वल है, बाकी तो और कुछ इक्वल नहीं है एक दूसरे के। सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज नंबर 6, sorry 1.3। in the first exercise also we have done 6 question and other the parts sub parts you can do yourself, and in the exercise number 1.2 I have done question number 4 5 and 6 completely, and जो कुछ एक दो पार्ट बचे हैं you can do yourself, right? Now we move to exercise number 1.3। ओके, एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हमें इसमें सबसेट्स और नॉट सबसेट्स बताने हैं कि वेदर गिवन सेट इज अ सबसेट ऑफ द अदर सेट। ठीक है, देखते हैं क्या है। फर्स्ट देख लेते हैं 1 2 2 3 4। 5 ये 2 है, तो 2 के इस सेट के सबसेट्स इसमें भी है ना, इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट में भी हैं, तो इट इज अ सबसेट।
ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं, ए बी सी। बी सी जी, ए इधर नहीं है, डी इधर नहीं है, सो इट इज नॉट अ सबसेट। आई होप इट इज क्लियर। तो अदर पार्ट्स यू कैन डू योरसेल्फ, अपने आप करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है पूछ सकते हैं, पूछने की मनाही नहीं है, बट आपको करना पड़ेगा खुद से। ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे तभी तो पता चलेगा कि क्या समझा है। ट्रू फॉल्स देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में सेट और सबसेट दिया हुआ है कि वो उसका सबसेट है या नहीं अदर सेट का, उसमें चेक करना है। तो चेक करके बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ये इसका सबसेट है या नहीं, सबसेट है क्योंकि ए बी इसमें है, तो ये फॉल्स है। थर्ड मैं करती हूँ, फोर्थ पार्ट अब। इस सेट का एलिमेंट ए इस सेट के अंदर है, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, क्लियर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, फोर्थ सेकंड, तो सेकंड क्वेश्चन भी इसका हो गया है। अदर पार्ट्स अपने आप करके देखना। ठीक है, नाउ थर्ड। सेट ए गिवन है, फिर नीचे पूछा गया है कि वो बिलोंग्स टू है या नहीं, ये बताना है। अच्छा, सब सेट पूछ रहे हैं। ओके, फर्स्ट इज अ सबसेट ऑफ ए और नॉट। 3 और 4 इस ये सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस। नो, अगर ये डबल सेट होता तो इट विल भी होता, तो ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। वन बिलोंग्स टू करेक्ट है, वन इज अ सबसेट ऑफ। ठीक है, ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है। देखिए, इसमें ये दिया हुआ है एलिमेंट्स का सेट, बट सेट यहाँ पे एलिमेंट तो ये है ना पूरा, तो ये सबसेट नहीं हो सकता, इनकरेक्ट है। ये बिलोंग्स टू होगा, ये डबल में होना चाहिए, तो ये बिलोंग्स टू है, यस। ये सबसेट है, यस। ये यस, ये नो। अदर पार्ट्स यू कैन डू योरसेल्फ। ठीक है, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चंस। हमें कुछ सेट दिए हुए हैं, उसके सारे सबसेट्स देख लिखने हैं। ए के सेट ये है, इसके क्या क्या होंगे, 5 और ए, ये सबसेट्स लिखने हैं इसके। बी, ए और बी, ए बी 5 ए बी,
फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो ये ऐसे होगा। आई होप इट इज क्लियर। फोर्थ, ठीक, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ द फाइव, फाइव के वन एलिमेंट होगा, ठीक है। ए सेट है, उसका फाइव है, उसके पावर सेट में कितने होंगे, देखिए, ये देखिए, हमें किसी भी पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स देखने होते हैं तो टू की पावर ए एन करते हैं, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर, तो उसके पावर सेट में कितने सेट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो देखने के लिए 0 इज इक्वल्स टू 1, सो पावर सेट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 5 विल बी 1 एलिमेंट, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ, क्लियर। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, ओके। एक्सरसाइज नंबर 1.3 के 6, 7, 8, 9 क्वेश्चंस रहते हैं, 4 क्वेश्चंस रहते हैं, आप लोग खुद से ट्राई करके देखिएगा। इफ यू आर एबल टू डू फाइन, अगर नहीं समझ में आता है यू कैन आस्क मी, एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में मैं 1.4, 5, 6 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके जो 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो मैं करा दूंगी, ठीक है। सो रजनी मैथमेटिक्स एकेडमी के जो भी अभी तक मेंबर्स हैं, I am really thankful, I am really grateful to all of you that you have subscribed my channel, you have given so much love to my channel, so keep loving my channel as you are loving now, and keep subscribing my channel, keep sharing my channel, and keep loving. So it's my request to all of you, whoever new person watch this video or it goes to any new person, please subscribe my channel and share it to others also. You can share it on your WhatsApp status, Instagram story, Facebook, anywhere you can share, okay, but make it reach to real needy students, real struggling students, so that they can get education, they can get maths free of cost online at their home. मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, घर बैठे मैथ्स पढ़े, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, एंड वन मोर थिंग, do not forget to press the bell icon button also, so that you get the notification of new video of at that time only and you watch immediately. Thank you so much.